Hi, hello guys, this is Gaurav Chauhan. How are you? Hope so you all are doing well. This is our introduction video of our new YouTube channel Nitya Education. Our objective is to provide best education video and I'm sure you must get benefited from this. So, the content that we provide on our channel is manufacturing videos, basic interview questions, all TET exam videos, mathematic videos up to 10th grade. Thank you. Please subscribe it for more educational videos. Thank you. Hi, friends. Hope you all are doing well and welcome to our new channel Nitya Education and our new channel related to the different type of educational videos, and our today topic is manufacturing related topic, and it is basic time that we can use in production and manufacturing, like takt time, cycle time, throughput time and lead time. Then how to calculate it and what is the basic difference between four times. Okay, then we move to the next slide. This is our channel logo, Nitya Education. Please like and subscribe. Then we discuss about the takt time, cycle time, throughput time and lead time. These all are in sound similar, but in takt time is very different because जो takt time हमारा होता है वो पूरा डिपेंड करता है मेरा कस्टमर डिमांड पे कि अगर कस्टमर डिमांड कम या ज़्यादा होती है तो टेक टाइम मेरा चेंज होता है। और एक आइडियल कंडीशन में बात करें, साइकिल टाइम हमारा एक प्रैक्टिकल कंडीशन में कि एक प्रोसेस का स्टार्ट टू एंड ऑफ द साइकिल टाइम जो होता है हमारा वो साइकिल टाइम कहलाता है। थ्रूपुट टाइम फ्रॉम RM मींस रॉ मटेरियल रिसीव टू dispatch, and lead time from order received to the customer delivery. Okay, then we detail study about takt time, cycle time and throughput time. What is takt time? Okay, takt time से हम समझते हैं कि it is a standard production demand rate. एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिमांड रेट होता है, रेट मींस दर, जिसमें वन प्रोडक्ट निकले, वो दर कहलाती है हमारी takt time. It is the calculated by dividing the regular working time with the required volume. मीन्स कितना हमारे पास रेगुलर वर्किंग टाइम है, सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। वर्किंग टाइम मीन्स एक्चुअल में जिस टाइम पे ऑपरेटर काम करता है वो, एंड डिवाइड बाय कितनी कस्टमर डिमांड है, तो हमारा टेक टाइम निकल आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक एग्जांपल से कि अगर मेरा टोटल वर्किंग टाइम जब हम कंपनी जाते हैं और आते हैं या कहीं भी ऑफिस जाते हैं तो 480 मिनट्स है, मीन्स 8 आवर्स हमारी वर्किंग होती है। उसमें कुछ टाइम्स होते हैं, वो डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट होते हैं, बट मैंने एक एग्जांपल लिया जनरल। 480 मिनट्स में 30 मिनट हमारा लंच ब्रेक होता है, 10 मिनट्स के हमारे 2 डिफरेंट टी ब्रेक्स होते हैं, जिसमें से 480 माइनस 50 दैट इज 430 मिनट्स इज आवर रेगुलर वर्किंग टाइम, मीन्स अवेलेबल टाइम, actual available time. And customer demand is 860, then our takt time is 430 into 60 and divide by 860, then in second 25,800 second and divide by 860, it is 30 second. Then I find our takt time is 30 second. Then when customer demand is every 30 second, means rate of one product is every 30 second one product is out for a customer. Okay, I think you understand. I just show one graphical example. This is our time scale, and this is 3 different operations: operation A, operation B and operation C. In operation A, the operator cycle time is 35 seconds. In operation B, 25 seconds, and operation C it is 20 seconds, and but our takt time is 30 seconds. Then first condition is operator 1 cycle time is more than takt time, then it is a problematic point. Okay, so in an ideal condition cycle time is equal to or nearly to takt time. If it is more than takt time, then it is a problem to our customer demand fulfillment.
means I am not able to complete our 860 target. Okay, you just understand according to this graph. Next I move to the cycle time. Cycle time you already know कि one cycle means start of the process to end of the process, a complete cycle that can nearly output to a product is called cycle time. जैसे कि आपको दिख रहा है स्टेशन है एक हमारा, इसमें यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ऑपरेटर ने काम करना और यहाँ पे इसका खत्म हो, तो ये एक टाइम हो गया, इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम तो उस साइकिल में वो जो काम कर पा रहा है वो पूरा जो भी टाइम होगा तो वो मेरा कहलाएगा साइकिल टाइम। जैसे कि यहाँ दिख रहा है एक साइकिल घूम रहा है, देन वो वहीं पे आके खत्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आवर साइकिल टाइम। ये एक एग्जांपल हमने दिया है ब्लॉक डायग्राम से कि एक हमारा जनरल फ्लो देखें तो ऑर्डर रिसीव होता है हमें, देन रॉ मटेरियल रिसीव होता है, देन प्रोसेस 1 पे वो कुछ काम करता है, ऑपरेटर एंड मशीन ऑफ वर्क, ऑपरेशन 2 है हमारा और प्रोसेस 3 है, एंड देन वो फाइनल डिस्पैच हमारा किया जाता है। इसके साथ फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, जब डिस्पैच होता है तो कस्टमर के एंड पे रिसीव हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा फ्लो होता है हमारा इंडस्ट्री का, जिसमें साइकिल टाइम हमने बताया कि स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द प्रोसेस। और अगर ऑल लाइन का हमें कंप्लीट साइकिल टाइम निकालना तो उसे हम कहते हैं सिग्मा सिटी। दिस इज प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3, समेशन ऑफ ऑल साइकिल टाइम। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, throughput time. It is a very interesting topic, throughput time. Someone is confusing in throughput time. I am just basically explain with the help of a line example. Throughput time. It is a time that manufacturer to make a product, including एक मैन्युफैक्चरर जब एक प्रोडक्ट बनाता है उसमें कई सारे टाइम इंक्लूड होते हैं। जैसे कि ये बता रहा है कि प्रोसेस टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम एंड वेट टाइम। तो ये चारों टाइम जब मिलते हैं तो वो मेरा कहलाता है थ्रूपुट में, थ्रूली जो स्टार्ट टू एंड तक जो चल रहा है वो टाइम। तो जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो मेरा थ्रूपुट टाइम निकल आता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ, देन रॉ मटेरियल आया, और रॉ मटेरियल रिसीव होते ही हो सकता है वो डिफरेंट मॉडल 1 2 3 4, देन हमारा सब असेंबली पे कुछ ऑपरेशन हुआ, फिर इंस्पेक्शन हुआ, देन वो स्टॉक हुआ कुछ देर के लिए, फिर मेन असेंबली में वर्क हुआ, देन डिस्पैच। ये टोटल जो हमारा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रोसेस टाइम, ये सारा व्हाइट जो पोर्शन है प्रोसेस टाइम है, येलो हमारा इंस्पेक्शन टाइम है, ये यहाँ जहां भी है ये हमारा वेटिंग टाइम है, और ये ग्रे एरो मींस मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेयर से मूव हो रहा है, तो वो सारा टाइम हमारा मूवमेंट टाइम में इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से हम थ्रूपुट टाइम को समझ सकते हैं। ठीक है, सेम हमने एग्जांपल से हम इसे समझाया कि थ्रूपुट टाइम साइकिल टाइम प्रोसेस टू प्रोसेस होता है, थ्रूपुट टाइम रॉ मटेरियल रिसीव टू डिस्पैच ऑफ द यूनिट। हम ये सिंपली कह सकते हैं रॉ मटेरियल जैसे ही हमारे पास आता है वहां से, लाइक हमारी जो डे है, लाइक 16 अप्रैल को हमारे पास कोई प्रोडक्ट आया और 20 अप्रैल को हमने डिस्पैच किया, तो 4 डे का जो टाइम हो गया हमारा टोटल थ्रूपुट टाइम निकल कर आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वी मूव टू दी अनदर टॉपिक, दिस इज कॉल्ड आवर थ्रूपुट टाइम। I just show some definition. What is the all 4 types of time included in throughput time? First, processing time. This is the time that to be take to transfer raw material into finished good. वो टाइम जो प्रोसेस, कोई भी आपके पास रॉ शीट आ गई, आयरन शीट्स आ गई, रेजिन प्लास्टिक पार्ट आ गया, उसको जब हम मोल्ड करके पूरा बनाते हैं कोई प्रोडक्ट, तो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, तो वो हमारा प्रोसेसिंग टाइम, जो भी प्रोसेस उसमें होते हैं। इंस्पेक्शन, जो हमने प्रोसेस किया उसको जब इंस्पेक्ट करते हैं, जो मटेरियल आया है रॉ मटेरियल वो ओके है, देन जो काम हो रहा है प्रोसेस में वो सही हो रहा है, देन फिनिश होने के बाद भी वो ओके प्रोडक्ट है एमजीए, तो वो सारा जो इंस्पेक्शन टाइम होता है वो भी हम इसमें थ्रूपुट टाइम में इंक्लूड करते हैं। थर्ड हमारा होता है मूवमेंट टाइम। तो मूवमेंट टाइम का मीन्स ये होता है कि वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, जो भी हमारा मूवमेंट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट जो भी हमारा होता है तो वो हमारा कहलाता है मूवमेंट टाइम। ओके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के बाहर, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे जितना भी सारा मूवमेंट टाइम होता है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड फोर्थ हमारा होता है वेट टाइम।
वेट टाइम इज वेटिंग, दिस इज टाइम टू वेट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। मींस रॉ मटेरियल अगर हमारा रखा है कहीं पे स्टोर एरिया में, देन जब तक वो लाइन पे नहीं पहुंचा, वो जो बीच का टाइम रहेगा तो वो उसका वेटिंग टाइम कहलाता है। कभी कभी एक साथ हमारे लॉट आ जाते हैं, तो उसमें इंस्पेक्शन के लिए कभी वेट करना पड़ता है कि फर्स्ट पार्ट इंस्पेक्ट हो रहा है तब तक सेकंड पार्ट को वेट करना, वो वेटिंग टाइम। एंड और भी कई सारी जो मिडल में एक्टिविटीज होती हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में भी कई बार वेटिंग टाइम होता है, तो उनको हम वेट टाइम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा थ्रूपुट टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो लीड टाइम। ओके, तो लीड टाइम एक ब्रॉड टर्म है अगर इसे हम समझें, बट अभी हम यहाँ बेसिक पढ़ते हैं कि व्हाट इज लीड टाइम। लीड टाइम, दिस इज द टाइम दैट स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर टू डिलीवर अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जैसे ही हम पे ऑर्डर आया, मतलब वहां से रिलीज हुआ और हम पे आया और हमने बना के उसको भेज दिया, तो वो जो पूरा टाइम होता है हमारा लीड टाइम कहलाता है। ठीक है, मींस मैंने आपको बताया कि 16 अप्रैल को मेरा राउंड ट्रिप रिसीव हुआ एंड डिस्पैच मैंने 20 को किया, बट ऑर्डर हो सकता है कि मेरा 12 अप्रैल को हुआ। जो रॉ मटेरियल ऑर्डर करने का बीच का पीरियड हो सकता है 4 डेज लगे हों मुझे रॉ मटेरियल रिसीव करने में, ऑर्डर करने में, अरेंज करने में, वो 4 दिन का गैप इन दोनों के बीच में इंक्लूड होता है। देन मैंने डिस्पैच किया 20th को, अब वो अगर चेन्नई जाना है तो हो सकता है कि 16th को वो हमारा पहुंचेगा, तो इस तरीके से वो 4 डेज वहां पे लगे, तो 8 डेज इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो 4 + 8 12 डेज का टोटल हमारा लीड टाइम कहलाएगा। ठीक है, बाकी इसके जो हम और डिटेल में है टाइप्स ऑफ लीड टाइम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आल्सो कमेंट फॉर नेक्स्ट टॉपिक। Like our next topic is types of lead time, difference between production and productivity, and types of production, types of productivity. तो ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, तो आप जस्ट कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। थैंक यू।